So, dear students, welcome to video lecture series on Survey 2 practical number 5 and 6. I hope that my audio is clear to you, and some of you can type the chat box that audio is clear so that I will start the session. So in the chat, you have to type audio is clear, and then we will start the session. Okay, so yesterday we have started with this practical number 1, 2, 3, and 4 that we have completed. This survey 2 practical, all they are based on unit number 1 and 2 only. So unit number 1 is tachometry. So that 2 practicals we have completed on that. And then other practicals are, most of the practicals are from unit number 2, that is curve. So here the purpose of this practical on based on the curve is, whenever we go for construction of the road, so we have to set the turnings in the road. In highway construction, there are different alignments are there. The roads alignments are not straight always, but there are change in the direction, so that from one place to another place we can reach by the road. So for such type of road alignment, we have to introduce the curve in between the
straight alignment of the road. And for that purpose, the straight road we can easily align by doing the simple procedure of ranging. So हम लोग ranging करके अलग अलग इंटरवल पे पॉइंट्स पेग फिक्स कर सकते हैं और स्ट्रेट रोड को हम लोग इजीली सेट कर सकते हैं. बट whenever there are turnings, so that points for the turning that we have to mark in the field. So before the clearing of the road work or the excavation starts, for all that we have to establish the number of points which are along the circular alignment, that is the turning in the road. So for that there are different methods are there, and two methods we have already discussed in the practical number 3 and 4. So today now we are going to look after the next procedure, that is regarding next procedure adopted for setting out the circular curve by using different technique. So in earlier practical number 3 and 4, we have seen that how we can take the offset from the tangent, and then in this fourth practical we have seen offset from long chord. Now we have to go for setting the circular curve by offset from chord produced. So here the objectives of the practical are to understand the basic elements of the horizontal curve. That is already we have covered in the theory lectures. So I hope that whatever the video lectures uploaded on the Moodle platform, you are watching it regularly and understanding the basic things regarding the what are the various different units are there. Then another is, now in this practical number 5, we have to set the curve by offset from chord produced. Now this word is important, chord produced. So in the already theory lecture we have covered this procedure, how the chord produce method is used, and then how the points are established. So here in this practical you will learn the how these points offsets are calculated, and in the field how the chord is produced, and by producing the chord then we can set the offset for the turnings road on the curve. So the list of the instrument required here are measuring tape, ranging rod, pegs, arrows, then line thread or chain, then lime powder, plumb bob, and particularly the cross staff. Here in earlier two practical, we have used the cross staff to set the perpendicular offset. तीसरे प्रैक्टिकल में हमने जो परपेंडिकुलर सेट किए थे वो हमने किए थे perpendicular offset from the tangent, and in fourth practical we have set the offset from long chord. So now here we are setting the offset, not perpendicular offset but only offset, and that is from the chord produced. So that procedure now we have to understand. As earlier you know that before starting this demonstration of this fifth practical, you must understand that we have to also go for calculation of the practical number 3 and 4. So for that, on the WhatsApp group, I shared the radius given to you. So you have to type the radius for your value. I hope that you have seen it. So in the chat box, you have to share what is the radius for your roll number. So all the students, they have to refer to the WhatsApp where I have shared the radius for various roll number, and accordingly that values we have to use for calculation. So in the chat box,
So there are different radius are given. So that radius is ranging from 30, 40 meter, 50 meter, 60 meter, 65 meter, like that. So that is given for the particular practical number 3, 4, and 5, I think. So now accordingly, we have to start making the calculation for these methods. So now today, we have to use the method from card produce. Now it is one of the important method. So that we will now see now. So here in this figure on your screen, you can see that the road direction is AV from point A to V. This is our back tangent, and point T1 is the start point of the curve. So now the direction AV that we have to change, and the deflection angle is also given to you through your WhatsApp group. So there is deflection angle of suppose 60 degree. तो इसका मतलब यह है कि 60 डिग्री रोड की डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई. हम लोग जो डायरेक्शन से जा रहे थे वहां से हमको 60 डिग्री में अभी रोड को टर्निंग देना है. सो द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री. सो दैट वी हैव टू नाउ रेफर. So here in the practical number 3 already we have seen that this AV is our tangent direction, and we have taken the offset from perpendicular offset from this tangent. Then in next practical number 4 we have taken the offset that is perpendicular offset from the chord. So here in this case, so you can watch in this figure, AV is our road direction, that is backward tangent, and VB is our forward tangent. So this angle at V, that is external angle at V, is deflection angle, that is given to you 60 degree or 40 degree, whatever it is. Now here we have taken the offset from the long chord, that is T1, T2 is the offset from the long chord that we have taken. Now in this next practical, we have to take the offset from the chord produce. So here what actually we have to do, so we will, हम लोग पहले यहाँ पर T1 पे एक पेग लगाएंगे. First peg we will fix at the point T1, and another peg we will fix at A1. पवन ने दरवाजा लाउन करे. So here from A1 to A, एक्चुअली हमको ये कर्व चाहिए और ये कर्व हमको फील्ड में मार्क करना है. तो पहला पॉइंट तो T1 हमको मालूम है कि यहाँ से हमको कर्व शुरू करना है, लेकिन आगे के पॉइंट्स हमको चाहिए A, B, C, लाइक दिस पॉइंट्स आर रिक्वायर. तो ये पॉइंट के लिए हमको ऑफसेट लेना है O1, फिर दूसरा ऑफसेट लेना है O2, फिर तीसरा ऑफसेट लेना है O3. So for all these we have to adopt the procedure that is offset from chord produce. तो यहाँ पे पहला जो chord है ये हो जाएगा आपका T1 A1. So T1 A1 is distance that is equal to the length of first chord. So first chord का distance हम लोग T1 A1 पे लेंगे जो कि हमारा पहला टेंजेंट है. तो T1 A1 पे हमको एक पेग ठोकनी पड़ेगी और T1 A1 जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रहेगा हमारा लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉर्ड. और फिर आपको O1 ऑफसेट लेना है, लेकिन ये ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना नहीं है. दिस इज ऑफसेट बाय मेजरिंग विद द टेप. तो इस प्रैक्टिकल के लिए आपको दो टेप इस्तेमाल करने पड़ेंगे. एक टेप का इस्तेमाल होगा A1
T1 से लेके A1 तक का डिस्टेंस गिनने के लिए, और दूसरे टेप का इस्तेमाल होगा A1 से लेके A तक का डिस्टेंस गिनने के लिए. सो A1A दैट इज ऑफसेट O1, ये हमको कैलकुलेट करना है. तो वी हैव टू यूज द फार्मूला फॉर दिस कैलकुलेशन. So we will first understand what is that formula. They are very simple. So as in earlier practical, we have to use the different formula. So here the formula for O1 is C1 square upon 2R. तो यहाँ पे हमको पहले C1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, C1, और R is the radius of the curve जो आपको दिए है प्रॉब्लम में. So first of all you will calculate the tangent length by using the formula R tan delta by 2. Then you will calculate the length of curve, that is pi r delta upon 180, and then we have to calculate the offset O1. So this O1 is calculated by C1 square upon 2R. तो यहाँ पर आपको C1 लगेगा. फिर ऑफसेट सेकंड कैलकुलेट करना है, तो ऑफसेट सेकंड कैलकुलेट करने के लिए आपको C2 लगेगा. सो देन ऑफसेट O3 के लिए आपको C लगेगा या C3 लगेगा. सो एवरी टाइम you have to calculate the offset. Likewise we have to calculate the offset up to n number. तो कितने ऑफसेट होंगे that also we have to calculate. So आपको थ्योरी का वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा इसके लिए, ये सारे कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं. How O1, O2, O3, ON is calculated. Before that we have to calculate C1, C2, C3, C4 like this, and all chord we have to calculate. यहाँ पर आपको C1 फर्स्ट कॉर्ड है, C2 सेकंड कॉर्ड है, C3 सेकंड थर्ड कॉर्ड है. लाइकवाइज आपको कॉर्ड निकालने पड़ेंगे. जब कॉर्ड निकाल लिए तो आपके लिए फार्मूला एकदम इजी है. O1 से लेके O1 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर अपॉन 2R, O2 इज इक्वल टू C2 अपॉन 2R इंटू C1 प्लस C2, and O3, O4, O5, all these they are C square upon 2R. So by using these formulas we have to calculate the offset. तो आपको पहले यहाँ पर ऑफसेट रेडी रखना है. ऑफसेट जब रेडी रहेंगे तब जाके फील्ड में हम लोग जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं. सो यू हैव टू कीप कैलकुलेशंस रेडी इन योर प्रैक्टिकल जर्नल. एंड हाउ दिस कैलकुलेशन इज डन, फॉर दैट यू हैव टू रेफर टू द थ्योरी लेक्चर ऑन ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड. सो हियर इन द ऑब्जर्वेशन टेबल you have to calculate the radius, not radius is given to you, then deflection angle is also given to you. So two things are given, R and delta is given. Peg interval that we can take as 10 meter or 20 meter, 10-20 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ऐसा ले सकते हैं हम लोग. So in your case आपकी रेडियस यदि छोटी है तो 5 मीटर ले लीजिए आप. आपकी रेडियस यदि बड़ी है यानी 80 मीटर के ऊपर है तो पेग इंटरवल आपको 10 लेना पड़ेगा. 80 मीटर से कम है तो पेग इंटरवल आपको 5 लेना पड़ेगा. सो लाइक वे you will calculate the offset O1, O2, O3, O4, O5, O6 like this. जब ये कैलकुलेशन पूरे हो जाएंगे, so by using this offset हमको फील्ड में जाके ऑफसेट का इस्तेमाल करके कर्व के पॉइंट्स सेट करने हैं. सो सबसे पहले हम लोग आएंगे अब ये फिगर में. सो बिफोर ऑल दिस आई वांट टू आस्क क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. सो यू हैव टू आंसर इन दिस फिगर, व्हाटएवर दिस फिगर इज ऑन योर स्क्रीन. C1, C2, C3, what it indicates? What is C1, C2, C3, etc. What is C1, C2, C3? So you have, few of you have to type in the chat box. What is C1, C2 and C3? So you have to type in the chat box. What is C1, C2 and C3?
So it is C1 is the length of initial subchord, correct? Then C2, that is second chord. Then C3, that is third chord. So in this method, it is important to calculate. I am writing in the chat box here. So first we have to calculate first subchord, which will be less than your peg interval. Peg interval आपने 5 मीटर लिया है, तो आपका फर्स्ट सबकॉर्ड उससे कम होगा. That you have to remember. Then second chord or then third chord, or they will be same and they will be equal to peg interval. So here पहला कॉर्ड जो रहेगा वो सब कॉर्ड रहेगा, फर्स्ट सब कॉर्ड जो पेग इंटरवल से कम रहेगा, एंड सेकंड कॉर्ड और थर्ड कॉर्ड इज इक्वल टू पेग इंटरवल. जितना पेग इंटरवल रहेगा उतना ही कॉर्ड की लंबाई रहेगी. एंड लास्ट इज अगेन लास्ट सब कॉर्ड विच इज अगेन लेस देन पेग इंटरवल. सो दिस थ्री थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो हमको कैलकुलेशन में करना है, पहला सब कॉर्ड निकालना है, सेकंड कॉर्ड जो रहेगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सारे पेग इंटरवल कितने रहेंगे, और लास्ट सब कॉर्ड हमारा फिर से छोटा रहेगा. सो हाउ दिस विल कैलकुलेट. तो यहाँ पे हमको पहले लेंथ ऑफ द कर्व वी हैव टू कैलकुलेट. तो हमको पहले कर्व की लेंथ वो निकालनी पड़ेगी यूजिंग फार्मूला पाई आर डेल्टा अपॉन 180. तो पाई आर डेल्टा अपॉन 180 के हिसाब से फर्स्ट we have to identify the length of first subchord and then other normal chords. So if this is completed, तो आपके पास में ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या रहेगा. पहला सबकॉर्ड है C1 और उसका ऑफसेट है आपके पास में O1. Now this data is available. Then second is C2 and offset is O2. Then third is C3 and offset is O3. So this data is now available to you with your calculation. And now we have to mark the points. So starting with first point, we will fix the peg at point T1. First peg we will fix on the T1. And second peg we will fix at A1. So T1 A1 is our first subchord, जो 5 मीटर से या peg interval से कम रहेगा. So if you have fixed the peg on A1, then you have to use two tapes. एक टेप पकड़ेंगे हम लोग A1 पे और दूसरा टेप पकड़ेंगे T1 पे. तो T1 से लेके आपको लंबाई गिनना है जो रहेगी आपकी C1 यानी इक्वल टू फर्स्ट सबकॉर्ड, एंड दूसरा टेप आपको पकड़ना है A1 पे और A1 से आपको गिनना है O1. O1 यानी आपका ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे आप, जो भी आएगा 0.2 0.5 मीटर वगैरह. तो दो टेप का इस्तेमाल करना है. पहला टेप आपका कॉर्ड को गिनेगा और दूसरा टेप आपका गिनेगा ऑफसेट को, और दोनों टेप पे जो डिजायर डिस्टेंस है वो जहां पर मिल रहा है अपने को वो पॉइंट हो जाएगा आपका ए. सो फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व यू हैव आइडेंटिफाइड. पहला पॉइंट आपने कर्व का ढूंढ लिया. ए पर आपको एक पेग फिक्स कर देनी है. A1 की पेग निकाल के ए पे फिक्स कर दो आप. सो दैट इज योर फर्स्ट पेग यू हैव फिक्स्ड. नाउ आवर मेथड इज ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड. तो हमको ये जो कॉर्ड है T1 से लेके ए वाला, ये T1 A कॉर्ड को हमको प्रोड्यूस करना है आगे B2 तक. सो T1 A, this chord we have to produce up to B2. So here let me use the marker so that it will be easy to you to see on the notes. So here पहला जो पॉइंट है A1,
ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। नाउ अनदर पॉइंट वी हैव टू फिक्स। सो बिफोर दैट, ये जो पॉइंट T1 है हमारा, T1 से लेके तो ए तक, T1A is our first card and that now we have to produce। तो हमको रेंजिंग करके T1A इसको रेंज करके आगे बढ़ाना है B2 पॉइंट तक। तो B2 पॉइंट जो है ये हमारा हो गया कार्ड प्रोड्यूस। सो दैट पॉइंट B2 वी हैव टू फिक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ C2। C2 यानी हमारा क्या है, सेकंड कार्ड इज इक्वल टू पेग इंटरवल। तो पेग इंटरवल 5 मीटर लिया है आपने, तो आपको T1A इस लाइन को आगे बढ़ाना है और B2 तक का उसको बढ़ाना है 5 मीटर से। तो नया पॉइंट आपको मिलेगा B2। अब B2 से फिर से हमको दो टेप का इस्तेमाल करना है। एक टेप हम पकड़ेंगे A पे और उससे डिस्टेंस गिनेंगे C2, और दूसरा टेप पकड़ेंगे B2 पे और B2 से डिस्टेंस गिनेंगे O2। यानी यहां से आपको ऑफसेट गिनना है और यहां से आपको कॉर्ड गिनना है। तो जहां पे दोनों डिस्टेंस बराबर मिल जाएंगे आपके O2 और C2, तो नया पॉइंट आपको मिलेगा जो हो जाएगा आपका B। सो लाइक वे सेकंड पॉइंट ऑन द कर्व यू आइडेंटिफाइड, B आपने मार्क कर लिया। सो दिस इज अवर सेकंड पॉइंट। ऐसे हमारी मेथड जो है वो कॉर्ड प्रोड्यूस है। तो अब हमारा जो कॉर्ड आएगा नया वाला A से लेके B तक का, इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा D2 तक। तो हम लोग फिर से रेंजिंग करेंगे और रेंजिंग करके A से लेके B तक का, और उसको आगे बढ़ाएंगे B से लेके D2 तक। सो अप टू D2 यू हैव टू अगेन मेक द रेंजिंग बाय एक्स्ट्रा 5 मीटर, यानी कॉर्ड को प्रोड्यूस किया आपने। तो D2 पॉइंट से फिर हमको एक बार फिर से टेप गिनना पड़ेगा और दूसरा टेप पकड़ेंगे B पॉइंट से, और B पॉइंट से हम लोग यहाँ पर गिनेंगे डिस्टेंस C3। सो यहां से गिनेंगे कॉर्ड और D2 से गिनेंगे ऑफसेट। तो जहां पे ये दोनों भी टेप आपको मिलेंगे, फिर से दो टेप इस्तेमाल करना है। एक टेप से C3 गिनेंगे और दूसरे टेप से O3 गिनेंगे। तो जहां पर भी ये दोनों टेप मिल जाएंगे वो आपका चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जो हो जाएगा D। सो लाइक वे हमको हर बार कॉर्ड को प्रोड्यूस करना है और फिर ऑफसेट लेना है। फिर नया कॉर्ड तैयार हो गया, कॉर्ड को आगे प्रोड्यूस करना है, फिर उसको ऑफसेट लेना है। फिर आपको आगे और एक नया पॉइंट मिलेगा, फिर उसको कॉर्ड को 5 मीटर से आगे प्रोड्यूस करो, एंड प्रोड्यूस करके फिर से आगे का ऑफसेट जो भी होगा O4 वो ले लो। सो लाइक वे यहाँ पे हर बार हम लोग कॉर्ड को प्रोड्यूस करके ऑफसेट गिन रहे हैं, एंड लाइक वे वी विल फाइंड आउट the various points on the road curve. So therefore here every time we are producing the chord, therefore this method is called as offset from chord produced. So this way we have to establish the number of points for this method. So here it is important to calculate the offset distance by using the formula O1 is equal to C1 square upon 2R like way. And then when the chord length and offset are calculated, then we can go to the field and mark the curve. So like way this practical we have to complete in the field whenever you will be physically present in the college. Till then you have to keep ready your calculations. Now here in the calculation part, once your calculations are completed, then here we have to write down again the skill acquired and outcome achieved. So all that things are known to you as our previous practical. And then important is here we have to write down the result. तो रिजल्ट में हमको यहाँ पर टेंजेंट लेंथ जो आपने कैलकुलेट की होगी r tan डेल्टा बाय 2 से, या लेंथ आप कर्व निकाली होगी आपने। देन फर्स्ट कार्ड C1 कितना आया था आपका, ये आपका पेग इंटरवल से कम आएगा, वो भी लिखना है आपको। फिर नॉर्मल कार्ड लिखना है जो आपका पेग इंटरवल कितना रहेगा, 5 मीटर या 10 मीटर। और फिर लास्ट सब कार्ड वो भी आपका 5 मीटर से कम रहेगा। एंड ये कार्ड का इस्तेमाल करके हम लोग O1, O2, O3, O4 जो भी निकालेंगे, जितने निकालेंगे आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, वो आपको यहाँ पर लिखना है।
सो ये ऑफसेट कितने निकालेंगे ये आपके कर के लंबाई पे डिपेंड है। तो कर की लंबाई आपने कैलकुलेट की है फॉर्मूले से, तो जितनी लंबाई होंगी उसमें आपको पेग इंटरवल के हिसाब से कितने ऑफसेट बैठते कार्ड बैठते वो आपको निकालना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहने वाले वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन दिस डाटा वी कैन यूज। So here, as a significance of this practical, you can understand. In the construction of road, when the direction of road changes, to mark such alignment with the required curvature in the alignment, this practical can be utilized. It is suitable for the medium size circular curve. This now you have to remember. स्मॉल कर्व है तो उसके लिए पहले दो मेथड हमने देखा है, मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट एंड ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। और मीडियम कर्व दिया है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। सो व्हेन द सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व as well as point of intersection is not accessible, or ground side along the tangent direction as well as on the long chord is not plain or clear, containing the bushes and shrubs। यानी पहले जो दो मेथड देखा हमने, जब टेंजेंट डायरेक्शन उनको सेट करना है तो टेंजेंट के वहां पे आपके झाड़ियां आ गई, जमीन बराबर नहीं है तो टेंजेंट से ऑफसेट नहीं ले सकते आप। फिर दूसरी मेथड आपने देखी थी ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। अब लॉन्ग कॉर्ड की भी प्रॉब्लम है आपका, लॉन्ग कॉर्ड भी आप सेट नहीं कर सकते फील्ड में, तो फिर आपको ऐसी मेथड चाहिए कि जिसके लिए आपको टेंजेंट के डायरेक्शन पे भी नहीं जाना है और कॉर्ड के डायरेक्शन पे भी नहीं जाना है, आपको जहां पे कर्व है वहीं से आगे आगे बढ़ना है। तो इस मेथड में हमको टेंजेंट डायरेक्शन को छोड़ के, लॉन्ग कॉर्ड को छोड़ के कॉर्ड प्रोड्यूस, यानी एक एक कॉर्ड को आगे आगे बढ़ाते जाओ और कर्व के पॉइंट के ऑफसेट लेते जाओ। लाइक वे वी आर अडॉप्टिंग द प्रोसीजर, एंड देयरफॉर फॉर द मीडियम साइज कर्व this method is very much important. So I think for this practical I have explained the procedure. For detailed calculation you have to refer to the theory lecture which is already uploaded on the Moodle platform, where the offset from chord produce method is exclusively explained and the problem is also solved, how that calculations are done. So by referring to that, you have to complete your calculation for this practical. So for the time now here, if you are having any difficulty with this or you want to ask anything, so you have to type in the chat box. So you can type any query in the chat box, or otherwise there are poll is coming to you. So I will launch the poll and you have to answer that poll. So on your screen, everybody has to answer to this poll and give the correct answer, whatever the exact position was there, so that the question is, have you watched all videos on the second unit curve on the Moodle platform? So you have to give the answer that is yes, no, or will watch from today. So everybody has to give answer to this poll. So yet only 37 participants had given the answer. Total 52 participants are present in this session. So most of the participants have now submitted their response. Only 4 participants were remaining. So all they have to record your poll
So here the poll is ended and the result is on your screen. So all of you have to watch the video for the explanation of the topic curve. So because all the maximum practicals based on this unit only, second unit only. So you have to watch all the theory lectures so that you will understand how this is done. So I will ending this poll here. Here the another question I want to ask that again it is same the review of yesterday's. So the second poll is on your screen. You have to give the answer to this second question also. The second question is, have you taken the printout of the practical journal of the survey 2 with staple binding? So if still any participant was remaining, you have to go to the Moodle platform and you have to take that PDF download, and then you have to take the printout. Front and back also you can print it. So all the guidelines of printing, all that is also given in the practical journal. And then you have to keep your practical journal ready. वहां बोला सर ऑनलाइन लेक्चर. So here again the maximum participants had given the answer. So the poll result is on your screen. So still again the 40% participants have not taken the printout. So see that you are taking the printout and you are start completing your practical journal task. So whenever you are physically present in the college, then you have to make the submissions and complete the field work. So before that, all you have to make this ready. So that is again this practical number 5, that is offset from code produce. So again I want to ask you in the chat box, so shall I proceed for the practical number 6? So please type yes or no in the chat box, or if you are having any query, then you can type your query or you can raise the hand and ask the question by unmuting yourself. So now we will proceed for the practical number 6. So here जो इसके पहले हमने प्रैक्टिकल लिए, प्रैक्टिकल नंबर 3, 4, 5, all these practicals they are based on the linear methods of setting out the curve. वहां पे हम लोग रेंजिंग रॉड, पेग और टेप और चेन बस इतना ही इस्तेमाल कर रहे थे. एंड कंपास वी आर यूजिंग, क्रॉसटॉफ वी आर यूजिंग फॉर सेटिंग द परपेंडिकुलर. तो क्रॉसटॉफ और टेप और रेंजिंग रॉड और पेग ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके ही हमने अभी तक का सारी कर्व सेट की है. सो देयर आर सिंपल कर्व, स्मॉल कर्व एंड मीडियम साइज कर्व. बट वी आर स्टार्टिंग बाय यूजिंग दिस कर्व बाय ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस. अभी मैंने कॉर्ड प्रोड्यूस की मेथड आपको एक्सप्लेन की है. उससे यदि आप कर्व सेट करने जाएंगे तो आपका जो रेंजिंग है, आपको हर बार रेंजिंग करके कॉर्ड को प्रोड्यूस करना है. सो एवरी टाइम the ranging you are doing and then producing the chord and then taking the offset. So ये प्रोसीजर में यदि आपके एरर आ गई, यानी रेंजिंग करते समय आपने एक्यूरेट रेंजिंग नहीं किया और ऑफसेट लेते समय भी आपका थोड़ा बहुत टेप हिल गया, बराबर 2 टेप का इस्तेमाल करना है आपको ऑफसेट लेने के लिए. तो यदि टेप हिल गया तो हर बार आपके पॉइंट में थोड़ी थोड़ी एरर आती जाएगी. तो जहां से रोड का टर्निंग चालू किया आपने,
वो टर्निंग एग्जैक्ट जहाँ पे दूसरा रोड आपको मिल जा रहा है, स्ट्रेट रोड जहाँ पे जाएगा, वहां पर बराबर कर्व आपकी जानी चाहिए एक्यूरेटली। यानी T1 पॉइंट से स्टार्ट होके T2 पॉइंट पे आपकी कर्व खत्म होने को ना। लेकिन हमारा ग्राउंड जो है वो प्लेन नहीं रहता। कागज पे तो हम लोग प्लेन पे डायग्राम बना सकते बराबर, और पेपर पे आपको बराबर पॉइंट कॉर्ड प्रोड्यूस वगैरह सब चाप लेके आप दिखा सकते बराबर। ड्राइंग पे बराबर हो सकता आपका, कैलकुलेशन में बराबर हो सकता, लेकिन फील्ड में जब रेंजिंग करेंगे हम लोग या ऑफसेट गिनेंगे तो वहां पे एरर आ सकती है। तो ऐसे केस में बड़े बड़े जो कर्व है, बड़े कर्व को मार्क करते समय एरर यदि आ जाएगी तो आपकी जो रोड है वो जहां जाना चाहिए था T2 पॉइंट पे, वो T2 पॉइंट के बजाय वहां पे अलग जगह पे चले जाएगी। तो देयर आर चांसेस ऑफ एरर इन द ऑल दीज लीनियर मेथड्स। तो ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, ये पहली जो मेथड हमने देखी प्रैक्टिकल नंबर 5 में, उसमें आपको एरर यदि आ गई तो आपका आगे का T2 पॉइंट जो है वो आपका थोड़ा सा सरक सकता है बाजू में। तो फिर आपको डबल से रिपीट करके चेक करके करेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए मार्क करते समय। जब रोड के कर्व की अलाइनमेंट हमको सेट करनी है तो हमको एक्यूरेसी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग थोड़ा सा आगे का इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते, दैट इज नथिंग बट थियोडलाइट। So for that, now here the next practical is ranging the circular curve by single theodolite, यानी एक theodolite का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। So here instrument required already are known to you. So you will require measuring tape, then you will require ranging rod, then you will require pegs and arrow, then chain, lime powder, plumb bob, cross top, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट लगेगा आपको theodolite and stand. So here we have to use the theodolite for setting out the circular curve. अब theodolite का मतलब यहाँ पर आ गया अपना एंगल. So we have to calculate the angle for this method. So first of all we will understand how this is done by using the theodolite. तो अब आपको यहाँ पे पॉइंट T1 जो है हमारा, ये है हमारा पहला पॉइंट जहां से हमको शुरुआत करनी है हमको, विच इज आवर फर्स्ट पॉइंट. So I will use the marker for this. So here the point T1 is our start point. यहाँ से हमको T1 से कर्व का सेट करना शुरू करने का है. तो थियोडलाइट आपको रखना पड़ेगा T1 पॉइंट पे. So on point T1 we will place the थियोडोलाइट. अब थियोडलाइट से आपको आगे के पॉइंट सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो एज शोन इन दिस फिगर, यू कैन वॉच हियर. You can watch here this direction T1V, ये हमारा टेंजेंट की डायरेक्शन है. यानी हमको रोड को ऐसे ले जाना था और उसको फिर डिफ्लेक्शन एंगल से मोड़ के दूसरे डायरेक्शन में पलटाना है अपने को. जब ऐसा रोड को डायरेक्शन पलटाना है अपने को, तो अपने को ये सर्कुलर कर्व सेट करनी पड़ेगी. तो ये सर्कुलर कर्व के लिए हमको पॉइंट ए बी सी ये आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर हो गया हमारे ए बी सी पॉइंट. तो टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी, we have to use the theodolite which we will place at point T1, tangent point T1, पहला वाला first start point. So point of curve इसको बोलते हैं हम लोग. So point of curve T1 पे हमको theodolite सेट करना है. Then you have to make the temporary adjustment of the theodolite. So पहले exact center पे theodolite खड़ा करेंगे, फिर फुट स्क्रू का इस्तेमाल करके उसका टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे, लेवलिंग करेंगे एंड फोकसिंग करके उसका क्रॉस हेयर क्लियर करेंगे और पैरेलल्स रिमूव करेंगे. सो दैट टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडलाइट विल ओवर. इसके बाद में फिर हमको पॉइंट फिक्स करने हैं. तो इस केस के लिए भी आपको पहले सबसे पहले तो
T1 से लेके A का दूरी कितनी रहेगी, फिर A से लेके B कितना दूर रहेगा, B से लेके C कितना दूर रहेगा, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. एंड दिस डिस्टेंसेस आर नथिंग बट अगेन द कॉर्ड लेंथ. तो फर्स्ट सब कॉर्ड, पहला सब कॉर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, T1 से लेके A तक. सो T1A इज आवर फर्स्ट सब कॉर्ड. देन AB ये सेकंड रहेगा ना कॉर्ड आपका, लेकिन ये भी BC दैट विल बी अगेन योर नेक्स्ट कॉर्ड. तो पहला कॉर्ड पेग इंटरवल से छोटा रहेगा, जैसा कि पहले प्रैक्टिकल में हमने देखा, यानी 5 मीटर का पेग इंटरवल है आपका. तो T1A डिस्टेंस हमारा 5 मीटर से कम रहेगा, और A से लेके B, B से लेके C ऐसे करके आगे के जो पॉइंट्स है उसमें का डिस्टेंस रहेगा 5 मीटर, विच इज इक्वल टू पेग इंटरवल, विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल कॉर्ड. सो फर्स्ट सब कॉर्ड, देन ऑल नॉर्मल कॉर्ड एंड लास्ट सब कॉर्ड. आखिरी का भी सब कॉर्ड आपको निकालना पड़ेगा, जो रहेगा फिर से 5 मीटर से कम, यानी पेग इंटरवल से कम रहेगा. सो लाइक वे अगेन फॉर दिस प्रैक्टिकल वी हैव टू कैलकुलेट the length of first subchord, normal chord and last subchord. जब ये कॉर्ड निकल जाएंगे तो कॉर्ड निकलने के बाद में फिर हमको आगे का कैलकुलेशन करना है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा टेबल में. हमको क्या करना है देखिए आप. सो हियर so on your रिजल्ट पेज, यहाँ पे हमको ये रिजल्ट पेज दिया है और यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन टेबल इसके अंदर हमको बनाना है. सो आई विल जस्ट टर्न दैट पेज. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन टेबल, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन टेबल. तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमको क्या चाहिए, T1 पॉइंट जो है हमारा, इसका चेनेज रहेगा यहाँ पे 0 मीटर. फिर पहला पॉइंट जो रहेगा उसका चेनेज रहेगा जितना आपका C1 है, यानी कॉर्ड की लेंथ आपकी पहले बार में डैश है, दूसरी बार में कॉर्ड की लेंथ है C1. तो यदि C1 हमारा पहला कॉर्ड है तो वो 20 मीटर का पेग इंटरवल यदि है तो 20 मीटर से कम रहेगा. आपके प्रॉब्लम में 10 मीटर है तो 10 मीटर लिखिए आप कॉमन कॉर्ड. ये जो C है आपके नॉर्मल कॉर्ड, ये सारे C आपके 10 मीटर या 5 मीटर रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर लेंथ ऑफ द कर्व. आपकी कर्व बड़ी है तो 20 मीटर लीजिए पेग इंटरवल, छोटी है तो 10 मीटर लीजिए, और उससे भी छोटी है तो 5 मीटर लीजिए. लेकिन उसके लिए आपको पहले आपकी कर्व की लेंथ कितनी है वो देखना पड़ेगा. सो यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व, दैट इज बाय यूजिंग फार्मूला पाई आर डेल्टा अपॉन 180. और कम से कम आपके 6 पॉइंट आने चाहिए, इतना हिसाब से आपको आपका कॉर्ड की लेंथ लेनी है, यानी पेग इंटरवल 6 से कम 6-7 पॉइंट आने चाहिए इस हिसाब से. सो योर चेनेज विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो पहला चेनेज आएगा 0, दूसरा आएगा फिर C1 ऐड करेंगे उसको, फिर तीसरे में आपका C ऐड करेंगे, चौथे में और उसका आगे का C ऐड करेंगे. लाइकवाइज यू हैव टू गो ऑन एडिंग द चेनेज. देन कॉर्ड लेंथ में पहले इसकी कॉर्ड लेंथ आ जाएंगी C1 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट सब कॉर्ड. दूसरे बार में आएगा C यानी नॉर्मल कॉर्ड, तीसरे बार में भी नॉर्मल कॉर्ड आएगा, चौथे में भी नॉर्मल कॉर्ड आएगा. सो ऑल दीज आर इक्वल टू पेग इंटरवल आइदर 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर. एंड लास्ट का सब कॉर्ड आपका फिर से कम आएगा तो वो हो जाएगा आपका C2. सो लाइक वे यू हैव टू मेक दिस कैलकुलेशन. अब जो C1 आ गया तो ये C1 के हिसाब से आपको फार्मूला यूज करके डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करना है. So that deflection angle we have to calculate by using the formula. So here the formula, I think it is not given here. So formula, I think it is not given here by mistake. So it is in practical number 5. Formula for deflection angle, that you have to take it from here. So here the deflection angle for tangent is given delta. This is given on page number 39. Deflection angle delta is equal to 1718.9 C upon R.
तो C जो है ये हमारा कॉर्ड है, तो यहाँ पर C1, C2, C3, C4 जो भी रहेंगे वो रखेंगे, तो आपको यहाँ पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 मिलेंगे। तो ये कैलकुलेशंस कैसे करना है इसके लिए भी थ्योरी के लेक्चर में, वीडियो लेक्चर डिटेल में डाला हुआ है आपका, तो वीडियो लेक्चर आपको देखना है कि हाउ दिस कैलकुलेशंस आर डन। So deflection angle of the tangent delta 1 that is calculated based on formula 1718.9 C upon R। तो C जो है ये हमारी कॉर्ड लेंथ है और R जो है ये हमारा रेडियस ऑफ द कर्व है। तो आपकी रेडियस ऑफ द कर्व आपको पुट करना पड़ेगा। तो ऐसा यदि हो जाएगा तो यू विल गेट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। So this delta 1, delta 2, delta 3 that you have to place in the observation table। ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको देखना है कि कैसे भरना है, उसको थ्योरी के लेक्चर में कैसे भरना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो लेक्चर। सो यहाँ पे आपका पहले पॉइंट के लिए आ जाएगा डेल्टा 1। पहले पॉइंट के लिए डेल्टा 1 की वैल्यू डिग्री मिनट सेकंड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। फिर दूसरे पॉइंट के लिए वैल्यू लिखेंगे डेल्टा 2 की, फिर डेल्टा 3, डेल्टा 4, लाइक वे ऑल डेल्टा आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहला डेल्टा अलग रहेगा, दूसरे से लेके तो सातवें तक डेल्टा एक जैसे रहेंगे आपके, क्योंकि सी की वैल्यू एक जैसी है हमारी, और आखिरी का डेल्टा अलग रहेगा। अब ये टेंजेंशियल एंगल निकल जाएंगे, तो इस पे से आपको यानी ये स्मॉल डेल्टा निकाला आपने पहले, अब आपको कैपिटल डेल्टा निकालना है। तो कैपिटल डेल्टा में हर एक का अगला एंगल जो है ऐड करते जाना है आपको। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो पहले वाले कॉलम में डेल्टा 1 आ जाएगा, दूसरे पॉइंट के लिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आ जाएगा, तीसरे के लिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 आ जाएगा, चौथे के लिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4। सो एवरी टाइम यू हैव टू गो ऑन एडिंग द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ नेक्स्ट कॉर्ड। तो ऐसे करके कैपिटल डेल्टा निकलेगा आपका डिफ्लेक्शन एंगल। सी हियर टेंजेंशियल एंगल स्मॉल डेल्टा वी हैव कैलकुलेटेड, एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन एंगल कैपिटल डेल्टा। अब जो कैपिटल डेल्टा आ जाएगा इसको आपको राउंड अबाउट करना है 20 सेकंड के इंटरवल के हिसाब से, क्योंकि आपके थियोडाइट का लिस्ट काउंट है 20 सेकंड। तो हम लोग कर्व सेट करने के लिए थियोडाइट इस्तेमाल करने वाले हैं, तो थियोडाइट इस्तेमाल करते समय आपको एंगल 20 सेकंड के मल्टीपल में लगेंगे। तो जो आपका कैपिटल डेल्टा आ गया डिफ्लेक्शन एंगल, इस डिफ्लेक्शन एंगल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल एंगल में थियोडाइट रीडिंग में। तो आखिरी का जो सेकंड है उसको आपको 0 सेकंड, 20 सेकंड या 40 सेकंड में रखना पड़ेगा, आखिरी का जो सेकंड की वैल्यू है। और इस प्रकार से ये जो सारे एंगल है उसको थियोडाइट एंगल में आप कन्वर्ट करेंगे, तो यू विल गेट ऑल द थियोडाइट एंगल। इस प्रकार से आपके कैलकुलेशन पूरे हो जाएंगे पहले। सो यू विल गेट द डिफ्लेक्शन एंगल विच वी कैन टेक ऑन द थियोडाइट। तो ये कैलकुलेशन आपको पहले करना है, देन यू कैन सेट द कर्व इन द फील्ड। अब ये कर्व कैसे सेट करना है, सो दैट वी विल नाउ सी। तो अभी फिगर में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो हमारी फिगर है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कैपिटल डेल्टा 1, कैपिटल डेल्टा 2, कैपिटल डेल्टा 3 ये चाहिए, जो कि हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में अभी निकाल लिए। तो आपको क्या करना है, T1 पे थियोडाइट रखना है, और T1 का थियोडाइट 0 डिग्री सेट रहेगा आपका बराबर V पॉइंट की तरफ, यानी टेंजेंशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। तो आपका थियोडाइट का 0 डिग्री सेट हो गया, और वो थियोडाइट आपका V पॉइंट की तरफ देख रहा है बराबर ऐसा। और अब उसके अंदर एंगल सेट करना है आपको डेल्टा 1, कैपिटल डेल्टा 1। तो वो होगा समझ लो 4 डिग्री। तो 4 डिग्री 20 मिनट सम सेकंड दैट यू हैव टू सेट ऑन द थियोडाइट। तो थियोडाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और अब थियोडाइट आपका ए पॉइंट की तरफ टर्न हो जाएगा। अब ये थियोडाइट से ए पॉइंट की तरफ टर्न हो गया आपका थियोडाइट, तो आपको T1 पॉइंट से कॉर्ड डिस्टेंस गिनना है, C1 इतना। C1 हमारा फर्स्ट सब कॉर्ड है, तो टेप से हम लोग डिस्टेंस गिनेंगे C1, और आपकी जो डायरेक्शन आ गई वो आ गई आपकी थियोडाइट से। तो जिधर अभी थियोडाइट देख रहा है उस डायरेक्शन पे आपको एक पेक ठोकनी है, ताकि आपका डिस्टेंस रहेगा C1 और डायरेक्शन बिल्कुल थियोडाइट के लाइन में आनी चाहिए आपके बराबर। तो वो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका A। तो पहला A पॉइंट फिक्स करने के लिए आपको डिस्टेंस C1 गिनना है, और डायरेक्शन के लिए एंगल गिनना है डेल्टा 1।
तो पहला पॉइंट फिक्स हो जाएगा। फिर थियोडलाइट का एंगल आपको बढ़ाना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा डेल्टा 2। तो थियोडलाइट का एंगल और बड़ा हो जाएगा डेल्टा 2 की इतना। और अब थियोडलाइट आपका कहां से देख रहा है, T1 से देख रहा है बी के तरफ, क्योंकि आपने डेल्टा 2 एंगल सेट कर दिया थियोडलाइट पे। तो अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट से डिस्टेंस गिनना है, कितना, C2 कॉर्ड। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस गिनना पड़ेगा आपको, जो रहेगा आपका पेग इंटरवल 5 मीटर या 10 मीटर। और डायरेक्शन आ जाएगी आपकी थियोडलाइट से डेल्टा 2 से। तो डेल्टा 2 से आपको डायरेक्शन मिल रही और C2 से आपको डिस्टेंस मिल रहा, तो वो ए से लेके डिस्टेंस गिनेंगे तो आपको नया पॉइंट मिल जाएगा बी। सो दैट विल बी योर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सिमिलरली फिर एंगल डेल्टा 3 सेट करेंगे थियोडलाइट पे, तो डायरेक्शन आपको मिल जाएगी थियोडलाइट से डेल्टा 3 और डिस्टेंस गिनना पड़ेगा बी से लेके तो सी तक। ये हो जाएगा आपका पेग इंटरवल। तो पेग इंटरवल इतना डिस्टेंस गिनना है और डायरेक्शन आपको थियोडलाइट से लेनी है। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा सी पॉइंट। तो ये प्रोसीजर हमको रिपीट करते जाना पड़ेगा, यानी एवरी टाइम डायरेक्शन हमको थियोडलाइट से मिल रही और क्वाड का डिस्टेंस हमको पिछले पॉइंट से लेना है। सो ऐसा करके आपकी कॉर आगे आगे बढ़ते जाएगी और एक ही जगह पे थियोडलाइट रख के आपको सारे पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सारे पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि थियोडलाइट आपका पहले इधर देखेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, और उसके हिसाब से आप पहले पॉइंट से डिस्टेंस गिनते आएंगे। सो यू विल गेट दैट पॉइंट विच इज ऑन द रोड कर्व। सो इस प्रकार से थियोडलाइट का इस्तेमाल करके हम लोग क्वाड डिस्टेंस गिन के आगे के पॉइंट फील्ड में जाके सेट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट कैपिटल डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। और कैपिटल डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालने के लिए आपको स्मॉल डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालना पड़ेगा। और उसके लिए फिर डेल्टा विच इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन एंगल, तो इसके लिए फार्मूला हमको यूज करना है 1718.9 C/R. So by using this formula we can calculate the small deflection angle and then we can calculate the capital deflection angle delta 1. and ये डाटा यदि आपके पास रेडी है डिफ्लेक्शन एंगल और कॉर्ड, तो आप थियोडलाइट को एक जगह पे खड़ा रख के सब पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते धीरे धीरे करके। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रैक्टिकल बाय यूजिंग थियोडलाइट। सो हियर इंपॉर्टेंट इज आप थियोडलाइट का इस्तेमाल नए तरीके से सीख रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले जब सर्वे 1 में आपने प्रैक्टिकल किया था उस समय आपको थियोडलाइट के ऊपर एंगल गिनने का सीखा था आपने, यानी थियोडलाइट को 0 पे सेट किया और घुमाया तो कितना एंगल घुमाया आपने, वो एंगल आप रीड कर रहे थे पहले। अब आपके पास उल्टा है, आपके पास में कागज पे पहले एंगल दिया है 0 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड, तो उतने एंगल पे आपको थियोडलाइट को सेट करना है। सो दिस इज अनदर स्किल यू आर रिक्वायरिंग टू लर्न हियर, कि दिया हुआ एंगल थियोडलाइट पे कैसे सेट करते करके। ये प्रोसीजर हमको फील्ड में जब थियोडलाइट ऑपरेट करेंगे तब आपको सीखने को मिलेगी हाउ वी कैन सेट द गिवन एंगल ऑन द थियोडलाइट। वो एंगल आपको सेट करते आ गया तो फिर उसका इस्तेमाल हमको ये प्रैक्टिकल के लिए करना है। कर्व सेट करने के लिए थियोडलाइट पे एंगल सेट करते जाओ, एक एक एंगल, और कॉर्ड डिस्टेंस गिनते जाओ आगे आगे का। तो ऐसा करते आप कर्व के पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। So this way, this practical number 6, setting the circular curve for the road alignment using theodolite, single theodolite, offset by using single theodolite, ये हम लोग कर सकते हैं। So that procedure we have to conduct when there will be a field practical, but before that this observation table you have to keep it ready, and then you have to solve these calculations. So for that I will again give you the roll number wise data for your practical number 6, 7, 8. तो जैसा आज 3, 4, 5 का डाटा दिया मैंने आपको, वैसे आपको 6, 7, 8 का डाटा मिलेगा, and by using that data you have to make your calculation, and by using that calculation then you will be able to mark the points on the field. तो वो हम लोग प्रैक्टिकल जब फील्ड में परफॉर्म करेंगे
तब आपको वो करना है. So here in the result, you have to write down the length of tangent, length of curve, then chord length, first subchord, then normal chord that is equal to peg interval 5, 10, 15 मीटर रहेगा वो. Then last subchord वो भी 5 मीटर से छोटा रहेगा. और फिर जो डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाले, उस पे से आपने टेंजेंशियल एंगल निकाले और उस पे से आपने एक्चुअल थियोडलाइट रीडिंग निकाले. ये थियोडलाइट रीडिंग आपके डिग्री मिनट सेकंड में रहेंगे और सेकंड का रीडिंग जो रहेगा वो इन मल्टीपल ऑफ 20 सेकंड रहेगा आखिरी का. तो 0, 20 या 40 सेकंड इतना ही आंसर आने वाला है आपका आखिरी के कॉलम में. सो दैट रीडिंग यू हैव टू राइट डाउन हियर एंड देन वी कैन कंप्लीट दिस प्रैक्टिकल. सो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिजल्ट इज कि थियोडलाइट से हम लोग मोर एक्यूरेटली कर्व सेट कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे एरर्स आने के चांसेस कम है. और क्वाड का इस्तेमाल करके डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करके हम लोग बड़ी बड़ी जो कर्व है यानी ऑफसेट फ्रॉम क्वाड प्रोड्यूस से भी आगे की बड़ी कर्व जो सेट करना है तो एक्यूरेसी के लिए आपको थियोडलाइट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द फील्ड यही मेथड इस्तेमाल होती है कर्व को सेट करने के लिए, विच इज यूजिंग सिंगल थियोडलाइट. सो फॉर दैट द डिटेल प्रोसीजर ऑफ द कैलकुलेशन दैट इज गिवन इन द थ्योरी लेक्चर वीडियो. 1 घंटे के वीडियो लेक्चर में आपको पहले समझाया गया है कि ऑफसेट फ्रॉम सिंगल थियोडलाइट मेथड कैसी है और उसका दूसरा वीडियो दिया है फिर से उसके अंदर उसका प्रॉब्लम कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करना वो भी दिया है. तो आपको दोनों भी वीडियो वॉच करना पड़ेगा और देन यू कैन कंप्लीट योर कैलकुलेशन पार्ट. सो फॉर दिस अगेन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेश्चन so that you can ask in the chat box and so if you are having any query then you have to type in the chat box. So in the chat box, it is said that it is our practical number 4, but don't go with the practical number whatever I am explaining. आपको जो प्रोसीजर दिया है वो मेथड का इस्तेमाल करना है and accordingly you have to consider the practical. So whatever the practical journal was given to you, accordingly you have to see that you have to use that journal. So I think that if you are having some query or any doubt, so you can write down into that. So here you will get the values for your next practicals to calculate the desired parameters for that setting out the curve. तो इसके लिए जो भी वैल्यूज लगेंगी वो आपके साथ में गूगल व्हाट्सएप पे शेयर किए जाएंगे कल. So till then, if you are having any question, you can raise your hand or you can type here thank you, goodbye, okay, and then we will stop here for this meeting. Remember that before leaving this meeting, you have to type something in the chat box so that your attendance will be marked here for this practical session. So all of you have to, before leaving this meeting, you have to type something in the chat box so that your attendance will be recorded for this session and then you can leave the meeting.
So before Pratiksha Ghate, what you want to ask? सर आपने जो प्रैक्टिकल का नाम बताया ना सर, मतलब अरेंजिंग सर्कुलर कर्व बाय टू थेडोलाइट मेथड, मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही दिया, अरेंजिंग सर्कुलर कर्व बाय रैंकेज मेथड बाय सिंगल थेडोलाइट। मतलब Yes, प्रैक्टिकल का so नाम there are some practical, those names were changed. So that deflection angle method is also called as Rankine method of deflection angle. हाँ, और सर वो जो टू थेडोलाइट का था ना जो आपने लास्ट बताया, टू थियोलाइट वाला प्रैक्टिकल अगले लेक्चर में होने वाला है। सर वो तो प्रैक्टिकल मतलब इसमें है ही नहीं, मतलब लिस्ट में वो दिखा ही नहीं। Pardon? टू थेडोलाइट वाला, हाँ, मतलब वो जो लिस्ट है ना प्रैक्टिकल लिस्ट, उसमें टू थेडोलाइट मेथड करके मतलब प्रैक्टिकल नहीं है सर, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं, मतलब नहीं है, वहां पे दिख नहीं रहा है ऐसा नाम, मतलब टू थेडोलाइट मेथड वाला। नहीं तो आपको जो प्रैक्टिकल जर्नल दिया है उसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्या क्या है, पढ़ो आप। पहला प्रैक्टिकल कौन सा है? फाइंडिंग आउट टैकोमेट्रिक कांस्टेंट, हाँ, फाइंडिंग आउट हाइट एंड डिस्टेंसेस बाय टैकोमेट्रिक 1A 1AB। ओके, Then second practical ranging circular curve by offset from long chord। यस, दैट आल्सो वी हैव कंप्लीटेड। हाँ, और सर उसके बाद ranging circular curve by offset from chord produce। यस, दैट आल्सो वी हैव डन नाउ टुडे। Ranging circular curve by Rankine method by using single theodolite। Yes, so Rankine method of deflection angle that we have seen today, that हाँ, is single theodolite method. सर उसके बाद है ranging of transition curve। Yes, so that we will see again in later lectures. Basic line measurement in triangulation system, conducting basic mini triangulation Yes, survey। that will be इसके also बाद there in the next lecture. हाँ, to find horizontal distance and difference in elevation, study of stethoscope, study of GPS, ranging circular curve by offset from tangents। इतना ही है Yes, सर। so offset from tangent already also we have seen. हाँ, Correct. Tomorrow we will see that triangulation and then offset from that other method. So that we will complete it tomorrow. yes sir। Okay. So whatever the practical journal was there, that you have to utilize. Serial number may be here and there, but we are covering all the practicals, and what the practicals are there, those who are only requiring field work, that we will complete when later on you will coming to the college. But till then, this explanation we are completing as is a part of practical work. You should know how to conduct, and we are trying to complete the calculation part, so that that will be done here in the online classes, and then later on the field work will be complete as and when possible. So if you have recorded your attendance by typing some of the thing in the chat box, then we can stop here for this meeting. So few of you can indicate me by saying goodbye, so that I will end this meeting now here. So I think Arpit Devre, Pooja Mandavgade, Damini, Ankita Bobde, Ruchika Katekar, Tejas Tambake, Rushikesh Gate, Aniket Kade, these people, I think they are not available on the phone. They have just entered into the meeting and they are wandering here and there. I think that is the thing, because they are not just leaving the meeting also, and they are not responding to the chat also. So, okay, thank you guys for listening to this session. And then tomorrow we will see the remaining practicals, and if there are some extra lectures will require, that will be also conducted on Friday and Saturday also. And then we will complete this week as a practical demonstration week to online mode. So thank you. I will stop this meeting here again. See you tomorrow. Sahil Dhote want to say something?